آج جو پریس ہمیں دینی ہے اس بارے میں کہ ہمارا جو منشور تھا جس میں ہم نے ہارٹیکلچر کو فوکس کیا تھا، ہارٹیکلچر مینس ہارٹیکلچر ڈیولپمنٹ آف ہارٹیکلچر ان شوپیان. تو اس کے لیے ہم نے جو پرسوں ہمارا ایک جو جو لیب ہماری جو آگے اس ہارٹیکلچر جو ڈپارٹمنٹ کی طرف سے، جس میں ہم نے آج آپ کو دکھایا ہوگا یا کل بھی ہم نے دکھایا وہ پیپر میں آیا ہے، 9.2 کروڑ کی ایک لیب بن رہی ہے بادماغ شوپیان میں، جس میں یہ کشمیر یا جموں کشمیر کی سب سے پہلی ایسی لیب ہوگی جس میں ہر پیسٹ سائڈ میں ہر کوئی دوائی کا ٹیسٹ لیا جائے گا. یہیں سے پہلے فرید آباد جاتا تھا، یہاں سے جو پیسٹ سائڈ آتا تھا اس کی سیمپلنگ فرید آباد میں جاتی تھی، پھر وہ 6 مہینے بعد واپس آتی تھی. اس کے بعد ہم نے جب تک وہ آتے تھے تب تک ہم نے وہ دوائی چھڑکی ہوتی تھی. لیکن اب کیا ہے کہ ہم نے جو جس لیبارٹری کا ہم نے یہاں لیب کا جو ہم نے یہاں اس پہ ہمارے جو آ گیا کنفرمیشن آ گئی، اپروول آ گیا ہے گورنمنٹ آف جموں کشمیر کی طرف سے، تو اپروو ہو گیا اس میں. تو اس کے بارے میں آپ سے یہی بات کرنی تھی کہ یہ جو ہمارا اسمبلی کا میں جو ہمارا جو مینیفیسٹو تھا اس میں جو جو چیزیں ہیں آہستہ آہستہ وہ آنے شروع ہو گئی ہے. تو اسی حوالے سے میں نے آپ کو کہا کہ یہ آپ کو بھی پتہ ہونا چاہے کہ یہ کتنا بڑا اہم جو ایک ایشو تھا شوپیان ڈسٹرکٹ میں. تو یہ پورے کشمیر میں جو جب اس کی ٹیسٹنگ ہوگی یہ پورے جموں کشمیر کی ہوگی، اور یہ جموں کشمیر کی پہلی واحد ٹیسٹنگ لیبارٹری ہوگی جس میں ہر قسم کی، چاہے پیتھولوجی جس میں ہمارے جو پتے ہیں اس کا بھی، زمین کا بھی جو فرٹیلائزر ہے اس کا بھی ٹیسٹ ہوگا. اس کے ساتھ ساتھ جو بھی دوائی باہر سے آئے گی، چاہے وہ انسیکٹسائڈ ہو چاہے وہ پیسٹسائڈ ہو، اس کا یہاں ٹیسٹ ہوگا، اور ٹیسٹ 24 آورس میں اس کی ٹیسٹنگ ہوگی، اور اس کا برانڈ میں پتہ چلے گا کہ کیا یہ اسٹینڈرڈ ہے کہ سب اسٹینڈرڈ ہے. اس لیے آپ کو میں نے اسی لیے بلایا کہ انشاءاللہ ہم اسی حساب سے اپنے حساب جو ہمارا مینیفیسٹو ہے وہ ہم چلانے کی کوشش کر رہے ہیں، اور کتنا ہم سے جتنا بھی ممکن ہم سے ہوگا انشاءاللہ ہم کمیٹڈ ہے شوپیان کے لوگوں کے ساتھ. اور آئندہ بھی ایسی ایسی کوئی چیزیں ہیں جو ہمارے پروجیکٹس ہیں، اس میں آئندہ اور بھی جو شوپیان کے لیے پیکیج ہے وہ اس میں اور بھی ایڈ ہوتا جائے گا شوپیان کے لیے. شوپیان ہارٹیکلچر ایگریکلچر سیکٹر ہے. جس طریقے سے موسم وبھاگ پہلے ہی کہتا ہے کہ اپ کمنگ پریڈکشن کیا ہے، موسم کب چینج ہوگا، اس طرح ہارٹیکلچر ایگریکلچر میں بھی ایسا ہونا چاہیے. جس طریقے سے آپ نے لیبارٹری لیب کی بات کی ہے، اب آپ دیکھنے والی بات ہے کب یہ اس کا انفراسٹرکچر ڈھانچہ وانچہ کھڑا ہوگا. اسی طریقے سے ہارٹیکلچر ایگریکلچر سیکٹر میں ایسا کچھ ہونا چاہیے، کیونکہ انشل پہ جب اب انسیکٹسائڈز اپنی ادویات اپنے کھیت کھلیانوں میں کرتے ہیں، ایسا ہونا چاہیے. دیکھیے اس میں ہم نے دیکھیے ایک تو ہو گیا ٹیسٹنگ، دوسرا ہمارا ہے کہ مین فوکس ہم نے کہا کہ جو ہمارا جو پوائنٹ جو ہم مین پوائنٹ جہاں سے یہ دوائی سب آتی ہے، جہاں سے مطلب لکھن پور سے، تو اس کو بھی ہم نے ان کو کہا کہ وہاں سے کسی دوائی کو وہاں سے کسی کو کشمیر میں یا جموں کشمیر میں انٹر ہونے کی اجازت مت دے دو تب تک جب تک اس دوائی یا کسی بھی چیز کی کوئی ٹیسٹنگ نہیں ہوگی. تو ہم نے وہاں سے اب وہاں بھی ایک لکھن پور سے ہی یہ اس میں ایک کرب رہے گا، وہاں سے بھی اب اس کو پورا کنٹرول ہو جائے گا، اور یہاں بھی کنٹرول میں رہے گا پورا جو سسٹم ہوگا. کس کی ضرورت ہوگی یہ شوپیان کے لیے، اور کب یہ اسٹارٹ ہوگی؟ اس کا یہ تو اس میں اب جو پیسہ ہے اس میں نبارڈ سے آئے گا پیسہ، تو میرے خیال ہے 2026 اور 27 میں اسٹارٹ ہوگی، تو میرے خیال میں 1.5 سال میں یا 2 سال میں کمپلیٹ ہو جائے گی. تو دیرینہ مانگ کی شوپیان ہوگی، بہت دیرانہ، ایک تو دیرانہ مانگ تھی اور یہ ہماری نیسسری تھی. چاہے وہ مانگ کوئی کرے نہ کرے لیکن اس کی طرف زیادہ دھیان لوگوں کو نہیں چاہتا، لیکن یہ اہم ضرورت ہے ہمارے شوپیان کے لیے، اور خاص کر شوپیان کے لیے لیکن پورے کشمیر کے لیے بہت ضرورت ہے اس کی. پی ڈی پی کا اکثر ماننا ہے کہ نیشنل کانفرنس ابھی جو چنی ہوئی سرکار ہے کچھ نہیں کر رہے، ان کا مینیفیسٹو جو کس طرف آپ دیکھ رہے اس چیز کو؟ دیکھیں پی ڈی پی تو ایک ایسی جماعت ہے جس کو ہم زیادہ ان کی طرف دھیان نہیں کرتے ہیں. جو کچھ تباہی آپ نے دیکھ رہے ہیں اب جس نے کی ہے، یہ تباہی سب انہی کی دین ہے، اور وہی تباہی جس کی دین ان کے پاس ہے، لیکن ان کو چاہیے تھا آپ چپ چاپ بیٹھے، تھوڑا ٹائم دے لوگوں کو سوچنے کے لیے. لیکن وہ ایسے ایسے ایشو اٹھاتے ہیں، چاہے اگر ہم دیکھیں گے وہ عمر صاحب کی حکومت پہ تنقید کرتے ہیں، اس کو یہ حکومت کرنی نہیں آتی ہے، اس کے پاس پاورز کیوں نہیں ہے، لینڈ ریگارڈنگ کا وہ ان کے خلاف ہوتا ہے. کبھی کبھی یہ جو آج کل کے آئے دن پریس نوٹ ہوتے ہیں پی ڈی پی کی، لیکن یہ ان کو یہ سوچنا چاہے کہ یہ جو تباہی ہے یہ ہوئی کس سے، کب ہوئی.
ये तब हुई, मैंने कल भी एक चैनल में मैं देख रहा था 2015 के बाद जब इनकी हुकूमत बनी, तो इनको इनको पूरा मौका दिया गया कि वो किस तरह एडमिनिस्ट्रेशन गवर्नमेंट कर सकते हैं। उसमें कितने स्कैंडल हुए हैं, उसमें भी बहुत स्कैंडल हुए हैं। इन्होंने पैसा कमाने की कोशिश की। यहाँ से बीजेपी आए, उसे उनको हम कहते हैं ना वो मोगडल असमस, इनको मोगडल में इनको रखा, कमाओ खाओ। खुद को वो बीजेपी आई, उन्हें इंस्टीट्यूशन को टेक ओवर किया, कश्मीर में टेक ओवर किया, कहाँ कहाँ कैसे चल रहा है सियासत में, ये कश्मीर के लोग क्या किस तरह इनके तबीयत है, नब्ज कैसे है, उन्होंने उस पर कैप्चर करने की कोशिश की। वो खजाने के पीछे लगे हैं, लेकिन वो चूंकि बीजेपी है, आरएस है, उनको आरएस का एक जमात है, उनको पैसे के साथ उनको एक आइडियालॉजी चलानी होती है। वो यहाँ घुस के तो जनाब उसने जो किया वो हमारे सामने। एमएलए को भी पैसे लगता है, एमएलए को भी मारदार, उसकी कोई रेस्पेक्ट नहीं होती है, पैसा नहीं आता है, पुलिस सब हमारे पास है नहीं, वो तो गवर्नमेंट इंडिया के पास है। इन सब चीजों का हम जब ध्यान करते हैं, इसकी जिम्मेवारी किस पे हम डालेंगे? इसकी जिम्मेवारी हम डायरेक्टली उसी पे डालेंगे जिसने ये काम किया है। यानी हम 2015 के बाद जो भी हुकूमत बनी, उसके बाद उसका वापस ले लिया वो सपोर्ट। उनका एक प्लान था, इनका एक प्लान होता है 50 साल का प्लान। उनने प्लान बन के इनके साथ हुकूमत की, फिर उनको वहां से बाहर धकेल दिया, फिर हुकूमत बनने के लिए कोई मौका नहीं दिया, और उनको स्टेट को इस हालत पर पहुंचा है कि स्टेट ही नहीं है। और मैं एट द एंड ऑफ द डे में यही कहूंगा, जो कुछ तबाही यहाँ हो रही है और जो हुई है यहाँ तबाही, ये सिर्फ और सिर्फ आपकी, आप भी पढ़े लिखे लोग हैं, लोग भी पढ़े लिखे हैं। अब किस ने ये किया? ये सोचे, यहाँ नौजवान सोचेगा ये जो तबाही आज आगे इसका वजह क्या है। अगर शेख साहब को हम कहेंगे कि उसने क्यों इलाहाक किया था हिंदुस्तान के साथ, रोजा में, रोजा से आज तक कितने साल हो गई, अभी भी उसको कोई बख्श, आज का नौजवान नहीं बख्शता। कहते उसने क्यों उस वक्त किया था, हालांकि हालात उस वक्त क्या थे इसको लोगों को नहीं पता। लेकिन ये एक सियासी गलती, एक हिस्ट्री की गलती जब होती है तो ये पूरा कौम इसको भुगतता है। 1.5 साल हुए हैं इस वक्त जो मौजूदा सरकार है, शबीर अहमद कुले और शोपियान कॉन्स्टिट्यूंसी को क्या कुछ लेबोरेटरी के बगैर? देखिए, उसके बगैर हमारा टूरिज्म जो डेवलपमेंट, जो टूरिज्म है हमारा, अब उस समय हम कोशिश करें और बढ़ाने की कोशिश करेंगे। चादर में हमने रखा है उसको बढ़ाने की कोशिश करेंगे, इंशाल्लाह वो भी ठीक रहेगा। हमने जो दूर दराज इलाके में हमारे जो कुछ ऐसी चीजें हैं जो हमारे प्ले फील्ड से, प्ले ग्राउंड से, यानी एक्चुअली हम क्या करना चाहेंगे, शुपियान की बहबूदी, हमने जो हमारा मैनिफेस्टो था सियासी नहीं था। हमने कभी नहीं कहा कि हम 200 यूनिट मुफ्त देंगे, हमने कभी नहीं कहा कि हमें ऑटोनॉमी लाएंगे, हमने कभी कहा कि हमने स्टेट लाएंगे। हमने सिर्फ कहा कि जो डेवलपमेंट हम करेंगे, मेरा बेनिफिट डेवलपमेंट पे ही है और नौजवानों पे है, और आज भी वही हमारा डेवलपमेंट वही है। अगर आप ये देखेंगे, अगर आपने कलर की बात की, हमने उसके बगैर क्या किया, आपको ही मैंने, आप ही मेरे साथ थे जब हमने 1010 जो ट्रांसफार्मर वहां लगाया, जहां लोगों को जो लोड शेडिंग होती थी, एक तो होती है पावर कट, पावर लोड शेडिंग भी होता है उसका अपना, क्योंकि आपका ट्रांसफार्मर ठीक नहीं था, उसको हमने 600 से उठा के 1000 कर दिया, ताकि मैंने उस वक्त भी आपको कहा कि अब ये जो आपकी लोड शेडिंग है वो नहीं होगी। तो एक वो भी हमने वहाँ किया, वो भी आपके पास वहाँ है। इसी तरह हमारा शुपियान में, शुपियान टाउन में अब हम जो हमने जो पार्क बनाए इस वक्त बटपोरा मेरे ख्याल में पार्क पार्क की चल रही है। उसके अलावा अगर आप देखेंगे आयुष हॉस्टल, वो इस वक्त उसका फाइनल फेज में डीपीआर बन गया है, वो बना रहे एक, उसमें आउट ऑफ वे जो आयुष अस्पताल होगा उसके डॉक्टर्स, नर्सेज, हर कोई चीज गवर्नमेंट ऑफ इंडिया खुद पैसा देगी। ये भी हमने इस एक ही साल में इतना हमने किया। और बाकी सड़कें भी बन रही है, आपके भी दो दो क्या में 2 सड़कें बन रही है पीएफजीएसए में, उनका भी हमने खुद गए। यहाँ हमारा क्या सैदपुरा से हमने 5, मेरे ख्याल 5-5.5 करोड़ का 4 किलोमीटर बन रहा है, रोड बन रहा है, नेटवर्क बन रही है। तो ये ऐसा ऐसा सब चीजें होगी। टाउन की हम बात करेंगे, टाउन में हमने जो सड़कें वड़कें उनके लिए उनका भी हम काम कर रहे हैं, उस पर भी हम काम कर रहे हैं। और एट द एंड ऑफ द डे हम ये कहेंगे इंशाल्लाह एक साल में जहाँ इतना डंडा भी बताया जा रहा है कि गवर्नमेंट काम कुछ नहीं करते, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह हम ये कहेंगे शायद एक साल में हम ये नहीं कहेंगे गवर्नमेंट हमने बहुत कुछ किया, लेकिन हमने एज पर
कैपेसिटी ऑफ द गवर्नमेंट और कैपेबिलिटी ऑफ द गवर्नमेंट, इंशाल्लाह हम राइट ट्रैक पे हैं। पहले जैसे स्टेटमेंट नहीं आते थे जब आप अलग थे नेशनल कॉन्फ्रेंस से, आज नेशनल कॉन्फ्रेंस के हित में शायद बात कर रहे हैं कि उमर साहब का दिल जीतना चाहिए। नहीं, मैंने उनको सपोर्ट तो नहीं किया। मैंने कहा कि अगर हमारे पास इस वक्त गवर्नमेंट चल रही है, ये लोगों ने चुनी है, हमारे पास ऑप्शन कुछ नहीं है, अब लोगों ने बनाई हुकूमत, अब हमें सबको चाहिए 4 साल उनको सपोर्ट करें। देखिए क्या मेरे कहने का मतलब है, इस वक्त बात पे कोई क्रिटिसाइज नहीं करना चाहिए कि उमर साहब ने ये नहीं किया, उमर साहब ने ये नहीं किया। इनको सजेशन देना चाहिए उमर साहब को कि भाई उमर साहब आप हमारे चीफ मिनिस्टर हैं, हम बैठेंगे, जो भी कोई चीज होगी, जहां भी कोई डिफिकल्टी होगी, इकट्ठे चलेंगे 5 साल तक। लेकिन उसके बदले हम क्या कहते हैं, हम सिर्फ क्रिटिसाइज करने से हमारी जो कश्मीर की साख है वो कमजोर होती है। 5 साल के बाद इलेक्शन होगा, अगर किसी ने कोई काम किया होगा तो वोट लोग डालेंगे, अगर नहीं किया होगा तो वोट लोग नहीं डालेंगे। इस वक्त हमें चाहिए कि हम इकट्ठे बैठ के इकट्ठी क्रिटिसाइज नहीं करेंगे, हम गवर्नमेंट को सपोर्ट करके कम से कम जो कुछ काम होगा इकट्ठे काम करके गवर्नमेंट को चलने दिए। उनको अगर हम मतलब उनको क्रिटिसाइज ना करें ज्यादा से ज्यादा। देखिए मैं आपको कल की बात करूंगा, कल के आपने बात की, नीतीश कुमार ने एक औरत का ये, इसमें हमें कोई सियासत नहीं करनी। गवर्नमेंट अब जो ठीक है, हिंदुस्तान में 16-17 करोड़ मुसलमान बैठे हैं, कम नहीं है, 16-17 करोड़ मुसलमान बैठे हैं। बिहार में तकरीबन 1-1.5 करोड़ लोग मुसलमान बैठे हैं, उनको करना चाहिए था। हमारा कौन सा इशू है? हमारा ये तो हमारे अपने दूसरे इशू है, हमारे इससे बड़े हमारे इश्यूज हैं। हमारी बच्चियां अगर आप देखेंगे, अगर हम देखेंगे बच्चियां इस वक्त जो हमारे कल परसों हमने एक वीडियो देखा था, बाईपास पे नौगाम में लड़कियां खुदा ना करे ऐसे बिक जाती है, दौड़ रही थी उनको गाड़ी के पीछे, हमें ले जाओ। इन चीजों में हमें देखना है कि हमारे माशरे में जो कश्मीर में हमारा माशरा बिगड़ गया है, हमारे बच्चियां जो बिगड़ गई है, हमारा माशरा जो बिगड़ गया है, हमारे बच्चे जो बिगड़ गए, हमारा इस वक्त ड्रग अब्यूज ज्यादा हो रहा है, उसकी तरफ हमें ध्यान करना जो हमारा है। तो दिल्ली में या इधर पटना में हमारे चीफ नीतीश कुमार चीफ मिनिस्टर है, उसका इंटेंशन हमें नहीं पता क्या वो हर से उसको कहते हैं। शोपियान की बात हम करेंगे लास्ट में, ये चीजें भी कि शोपियान के लिए पैरामेडिकल कॉलेज होना चाहिए, शोपियान के लिए वुमेन्स कॉलेज होना चाहिए, इसमें हमने पहल तो नहीं देखी किया। हम आपको आज उसका हमने जो वुमेन कॉलेज है, गैनी हॉस्टल अलग है, उसके लिए हमने रिकमेंडेशन हर जगह टाउन। तो इंशाल्लाह अब कुछ चीजें वो हम नहीं दिखाएंगे कि दोस्त जिसको बहुत होते हैं इलाके में, तो हमारे शोपियान में एक्सपेक्टेशन रखेंगे इंशाल्लाह। टाउन की बात चल रही है, अभी तक जो स्टेडियम है बाटपुरा में वो अभी तक अपग्रेड नहीं हुआ है। उसमें इसमें एक केस चल रहा था, एक माइग्रेट ने किया था कि हम में से इसमें 6 कनाल हमारे हैं उस ग्राउंड में, तो उसका वो हाई कोर्ट ने कहा कि इसको कंपनसेशन दे दो, और मेरे ख्याल में उसका कंपनसेशन बनता था कोई 6 करोड़, कोई 2.5 करोड़ रुपए। तो उसको अब इस साल हम उसको डिसबर्स करेंगे, वो 2.5 करोड़ का पेमेंट करेंगे, तो फिर इसमें हम इम्प्रूवमेंट करेंगे। उसको वैसे भी मैट भी मैंने दे दिया है, किट्स भी मैंने दे दी है। जब आप कल से मैच शुरू हुआ, वहाँ मैट शर्ट हमने दिया अपने कॉन्फिडेंस का एग्जाम है, 12 भी पढ़ सकते हैं। अभी तक इंडोर स्टेडियम कंप्लीट, मेरे ख्याल में 5-8 दिन में वो हो जाएगा इनॉग्रेट। तो 5 दिन गवर्नर साहब की तरफ से कल एक जारी हुआ जिसमें 103 जो मुलाजिमीन को किया गया, तो क्या कहना चाहिए? बड़े लोग की बड़ी बातें हैं, पहले अपॉइंटमेंट किया, फिर एम्बेसडमेंट आ गया, तो फिर इंक्वायरी हो गई। तो मेरे ख्याल में मेरे जो जहाँ तक मेरा जाती राय है, या तो ये पूरा जो इसमें अपॉइंटमेंट है, या तो सबको कलदम करना था, या तो सबको इस तरह हम अगर हमने 200 लोग किसी जगह मुंतखब किए या सिलेक्ट किए, हम आज कह रहे हैं 100 लोग हैं बदजाती से आगे, सिलेक्ट करने वाले लोग यही है, एसएसबी भी वही है, सब कुछ करने वाले भी वही है। अब इनमें कौन सा, अगर ये 100 लोग कहते हैं ये गलत है, गलत किसने किया? गलत किया इन्होंने, इनको सिलेक्ट किया। अब उनको 100 को निकाल के अब 100 को रखा है, मेरे ख्याल में कोर्ट में चैलेंज होगा, या तो 100 को वापस कर दो, या अगर 400 बने 400 का 400 लिस्ट कैंसिल करके नया इसमें एक सिलेक्शन प्रोसेस शुरू कर दीजिए। बड़गाम में जहाँ पीडीपी ने जीत हासिल की, इसी तरह गतिपुरम में उनका कल एक इजलास था, वहाँ पे भी काफी लोगों ने शिरकत की। तो क्या लग रहा है आपको कि पीडीपी कमबैक कर रही है? देखिए बड़गाम में पीडीपी ने नहीं जीता, बड़गाम में आगा रोहला ने जीता है। मैं आपसे